Okay, so screen share कर रहा हूँ और just let me confirm my screen is visible to everyone or not. Online students, just let me confirm. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, fine. So, uh, this is the session related to the foundation art. Uh, as we know about the foundation art is purely based on traditional sketching and drawing part. Okay, so how many students is aware about that? When you entered an animation and VFX sector, which is in our opinion that it's totally based on computer or laptop kind of thing. We need some gadgets and we have to work out on the just a minute. Uh, yes, ma'am. Good afternoon. किस टाइम कैनवास रखे हुए हैं मैम अभी तो बैक मैं तो आज तो कर ही नहीं रहा क्लास चल रही है अभी मैम अभी मेरी 4 बजे तक क्लास है और कल के सेशन में करता हूँ कल भी 2 सेशन है मॉर्निंग में जी मैं जब करूँगा मैम तो आपको पीछे बुलाऊँगा स्टार्ट करूँगा तो आपसे सेशन ले लूँगा अभी तो आज क्लास में बिजी हो गया ठीक है कंप्लीट करके बता ये मैम इसी क्लासरूम में रखे हुए हैं जहाँ मैं क्लास लेता था मॉर्निंग में ठीक है मैम ओके so there is a perception kind of thing which is students having that in animation and VFX sector, why we do sketches and drawing, if everything is we can operate on gadgets and we can do it all things on tools. So why we are doing it on a traditional way, right? Why we are following traditional style of drawing and painting. So guys, you are aware about that? You have any knowledge why we are doing foundation art kind of thing with a pencil or paper? So just let me confirm. Guys, if you are online, so you guys also answer it if you have any answer. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो मेरी बात समझ में है मेरा जो मोटिव है पूछने का कि आप लोग को फाउंडेशन आर्ट जो हम शुरू कर रहे हैं वी आर starting foundation art session and it's purely based on traditional style of drawing. Traditional style it means we have to use pencil and paper for that. So why we are doing work start pencil and paper work instead of working on gadgets? Any reason or you have a specific idea why we are doing work? No. So offline student, yes. आप लोगों का क्या ओपिनियन है क्यों कर रहे हैं? अरे यार एनिमेशन वीएफएक्स में हो इतना तो पता होगा तुम लोगों को कि हम कर रहे हैं तो रीजन क्या है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ड्राइंग स्केचिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग मास्टर का ये बोल सकते हैं हां मेरा क्वेश्चन दो दूसरा था कि ट्रेडिशनल को क्यों फॉलो कर रहे हैं if we can work out on digital we have tools of digital tools and while you are working you are aware about the digital drawing tools you guys are aware about that or not first of all you have to understand that if you are aware about the digital drawing tools so you can compare it if you are not aware about that so मेरा क्वेश्चन बेकार है वो बात पूछ रहा हूँ जो आपको पता नहीं राइट तो कितने लोग अवेयर है कि आजकल डिजिटल ड्राइंग टूल्स कुछ आ गए हैं और उनका बहुत ज्यादा यूज होता है आपको पता है बाकी आप लोगों को नहीं पता है अरे पता नहीं यू हैव टू रेज योर हैंड क्योंकि मुझे देखना है कितने लोग अवेयर हैं टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ कितने लोग कंफर्टेबल हैं कितने लोगों को जरूरत है और उन चीजों को अपडेट करने का ओके तो काफी लोगों को पता है digital drawing tools की अगर बात करूं so there is a lots of digital drawing tools right now in a market that first of all is a pen tablet is a kind of mouse and there is a pad
So you can easily handle your pen. It's a digital pen, so you can handle it as a pencil, and you have to draw on pad. So the result will be appear on the screen. So that's the reason we can make soft copies of your live drawing or sketches on the same time, right? So this is a digital drawing tool for initial, right? And but nowadays technology goes upgraded, and we have a touch screen pads. Touch screen pads benefit like that. You have a stylus in your mobile phone, stylus. So are you aware about the stylus? Stylus is a kind of again a digital pen. So it's a small gadget you can pull out from your mobile phone and you can write down on your mobile screen. So again, it's a digital drawing tool. You can use it on your mobile phones. Or in iPad, there is a pencil. So definitely, Apple is a kind of different kind of innovation. So their name, they put it pencil, iPencil, right? Otherwise, Wacom and other gadgets come with the pen, digital pen, stylus, right? So pen tablet. But the when Apple comes in the market with a pencil, so same technology we can rough out on the direct on the screen. The benefit of direct drawing on the screen is like that you are working with a traditional style, right? जैसे कि पैड के साथ पेन टेबलेट के साथ किसी ने काम किया है क्या प्रॉब्लम आता है hand-eye coordination. Definitely, if you are good in drawing and sketching, so every artist is facing the same issue because from the beginning of our childhood, we start working like that. This is the paper, and I was working on the paper, so I have to focus on the paper. Right, so this is my beginning. But when I work with the digital drawing tool first time, so this is the problem is like that hand-eye coordination. Coordination like that, we have to draw here and we have to focus on the screen because the result would be appeared on the screen. That's the reason artists can't work out properly, and the pad surface is very smooth and very slippery. So the problem is that pencil is little bit jerky, but when you work with the stylus or pen tab, so the smooth screen, your sketches and strokes not look like that. Okay, so we have to do hard practice for that. Okay, and the technology then face the same issue from the artists. They got some idea and feedback from the artists. So artists said that it's a little bit complicated for us. But definitely it's a cheaper tool. It's not too costly. It's starting around 4,000 to 10,000 or 12,000. It depends on the sizes. I'm talking about the pen tablet, normal pen tablet. Okay, so there are the sizes that around started around 6 inches to 12 inches or 16 inches around, right? So when the feedback comes out, technology is again updated, and right now it's lots of touch screen pen tablet comes out. Okay, right now in the market, and it's cost around about 30,000. The Neon and the Wacom is the most popular brand for the pen tablet. So you guys can buy it according to your budget. What exactly you want to face in future? Definitely, the digital drawing tool is the most important thing. So initially, you can start with a digital drawing tool, normal pen tablet you can buy. So it will help you to understand the technology, right? So it could be little bit more easier for artists because when we work with a touch screen iPad, so we have to focus on the screen and the result comes on the screen. And we can start working on the directly on the screen with the pen tab. So iPad and the other option of touch screen pen tablet is most easiest. And it's easy for sharing, it's easy for save the file, and it's easy for editing. Am I right now? If you are working with a traditional drawing tool, so there is a problem in that how to share your file immediately with the client. It's not possible in a traditional way. I am working with a pen or paper, so I have to draw everything on the paper. Then I have to click the image. Then I have to share through the WhatsApp or email. But
client suggests that just remove the particular separate section and you will draw this circle. It's not look like circle, it's just like an oval and convert it into oval. Then again I have to draw on the paper, then I have to click image, then I have to send it again. Then again we have to wait for the approval, right? So, but on a digital point, we can start working on the pattern and we can make another layer for that, and so we can easily change it and we can easily edit it. If we face any issue, we do some correction, we want some correction, so we can easily do it with the control that option. Am I right? समझ आ रहा है ना इतना? So वो एक जो पार्ट था तो आर्टिस्ट के लिए ना टूल्स दे दिए गए. टूल्स आपके स्किल को तो इम्प्रूव नहीं करता. पहली चीज, स्किल इज अ डिफरेंट थिंग. टूल्स आपके स्किल को इजी कर देता है काम करना. यानी आपके जो हार्डकोर आपका जो मेहनत बोलता है ना जिसको, वो क्या मैन पावर जो ज्यादा लगता है वो कम कर देता है. टेक्नोलॉजी ने यही एक आदमी है. मैन पावर की जरूरत क्या होती है? पहला क्या डिजिटल आर्टिस्ट काम कर रहा है, फिर टेक्निकल आर्टिस्ट आया, उसने उसको ट्रेस किया पूरे ड्राइंग को. जैसे कि क्लासिकल आपने ड्राइंग्स देखे ना, क्लासिकल एनिमेशन भी एनिमेशन क्लासिकल तो ट्रेसिंग के अलग आर्टिस्ट होते थे, डिजिटल कलरिंग आर्टिस्ट होते थे. वो स्केचिंग आर्टिस्ट से पेपर लेते थे और उसको वो फोटोशॉप पे ड्रॉ करते थे, पूरा ट्रेस करते थे, कलरिंग किया जाता था. फिर 2D आर्टिस्ट एनिमेशन को दिया जाता था, एनिमेटर्स उसके सेपरेट सेपरेट सेक्शंस बनाते थे, रिग करते थे जिसको, और वो एनिमेशन होता था. तो इट्स अ टू लेंथी प्रोसेस. लेकिन अभी क्या है कि अभी आर्टिस्ट सीधा वहाँ डायरेक्ट काम कर सकते हैं. मेरा वो सारी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर भी हमें स्किल के लिए पेंसिल को क्यों यूज करना है? व्हाई वी आर वर्किंग विद द नॉर्मल ट्रेडिशनल पेंसिल? व्हाई? क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि ऑलरेडी डिजिटल टूल्स जैसे मैंने आपको बताया, इजी टू शेयर, इजी टू एडिट, ठीक है, और इजी है काम करना. लेकिन फिर भी पेंसिल की जरूरत है. रीजन, कोई सही और जेन्युइन रीजन जो आपके पास होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं. मेरा इंटेंशन हमेशा ये होगा कि पहले जो भी चीज करो और हम जो भी चीज आपको सिखाएं, आप उसमें पहले कॉन्फिडेंट हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई. ऐसा नहीं हो कि आपको 2 साल बाद पता लगेगा फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा था मैं यार, है ना? ऐसा तो नहीं हो गया 2 साल बाद पता लगा अरे यार अगर ये काम पेन टैबलेट से मैं इतनी इजीली कर सकता हूँ, मुझे पेंसिल से क्यों कराया. तो यू हैव टू अवेयर अबाउट इट, व्हाई वी आर डूइंग. गिव मी अ स्पेसिफिक रीजन. क्या नाम है आपका? दीपांशु. रीजन है आपके पास क्यों? कोई रीजन नहीं. जो भी करा वो चलता रहेगा. अगर पेंसिल शुरू कराऊं तो पेन भी ठीक है, क्या फर्क पड़ा. कोई तो एक रीजन दो यार कि क्यों कर रहा हो. प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एक थ्योरेटिकल पार्ट है यार, है ना? अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो देयर इज सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल फॉर द डिजाइनिंग, specific principles for graphic designing, specific principles and elements for drawing and sketching. So it's a part of theory, right? Practical field में नहीं दिखाई देता तो principle नहीं फॉलो करता. अगर एज एन आर्टिस्ट में बात करूँ तो थ्योरी मैंने कॉलेज में पढ़ा, ठीक है. थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन जब मैं पेपर पे करता हूँ तो वो क्या होता है, थ्योरी मैंने वहाँ पढ़ाई, परसेप्शन मेरे दिमाग में, फिर मेरा अपना एस्थेटिक सेंस होता है. अब किसी आर्टिस्ट को रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता. मेरे डिजाइन में नहीं मिलेगा आपको. देखिए तो स्पेसिफिक एक कलर थ्योरी हर आर्टिस्ट और डिजाइनर का होता है, राइट? तो वो एक परसेप्शन अलग है. सॉरी आवाज नहीं आ रही. from the digital tools out there, you work with the digital pen, so it's your own design. No, every artist has their own style of drawing and sketching. So easily you can understand that कि आपका ये जैसे अगर सपोज मैं डिजिटल पेन से स्केच करूंगा और आप कर रहे हो से, राइट? तो आपकी ड्राइंग और मेरी ड्राइंग सिमिलर नहीं हो सकती. हो नहीं सकता होगा, है ना? क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो और उससे सीनियर होगा उसका स्टाइल अलग होगा काम करने का. तो स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है कि आपका खुद का है किसी और का है. आर्ट को आप चोरी नहीं कर सकते. हाँ वो अलग बात है कि आपने कॉपी पेस्ट की डेटा को उठाया आपने शेयर कर दिया और वो एक अलग है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. तो स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि जब हम
हाँ अच्छा, मेरे घर से फोन नहीं आया अभी तक। आपको पता कि नहीं आ रहा है क्लास चल रहा है? आज शेयर कर देना घर पे जाके, प्रिंट लेके लगा देना, सबको बता देना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबके मम्मी और पापा का फोन ना इसी टाइम आता है, किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आता क्लास ड्यूरेशन। जिसको भी मैं पूछता हूँ किसका फोन है, वो बोलते हैं पापा का है, मम्मी का है, भाई का है। और आई होप कि मम्मी और पापा सबसे ज्यादा इस बारे में सोचते होंगे कि यार क्लास में डिस्टर्ब नहीं करो, क्लास चल रही होगी अभी तक, क्योंकि किसी ने रीजन नहीं दिया कि गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, सब बहुत परेशान कर दिया। मम्मी पापा को तो जरूर शेयर कर दो टाइम टेबल, और अपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर देना। आपका जो शेड्यूल टाइम टेबल थोड़ा टाइट रहेगा, स्पेशली मेरे बैच में मैं अलाउ नहीं करता जल्दी फोन पिक करना, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता। जो अभी कॉल मैंने पिक किया वो डील का था, इसलिए मुझे उठाना पड़ा, अदरवाइज मेरे फोन बजते रहता, मैं फोन ही पिक करता क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना क्लास को, क्योंकि अदरवाइज ना क्लास क्लास की तरह नहीं लगता। अगर कोई फोन पे बात कर रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे एक्सक्यूज बोलूँ कि सॉरी यार मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा बोलने, मुझे वो बड़ा अजीब सा फील होगा। बेटर है आप लोग उस चीज को क्लास की तरह लें, अदरवाइज ना बाहर से भी जो बंदा आपको बात कर रहा हो वो क्या ऐसे क्लास चल रहा है, अरे सही है यार, क्या सुनाओ यार क्या चल रहा है, लुक लिटिल बिट ऑड। कहाँ था और मैं, हाँ स्पेसिफिक यूजिंग पेंसिल। पेंसिल सबसे अच्छी चीज जो है पेंसिल और पेपर की क्या है कि इट्स एन वेरी चीपेस्ट मीडियम टू शेयर आइडिया, है ना, और इट्स वेरी हैंडी, आप कभी भी उसे कैरी कर सकते हो। पेंसिल लेके आप क्लाइंट के साथ कैफे कैफे डे में भी जाके क्लाइंट के साथ बैठ के आप बात कर रहे हो, पेन आपके पास है तो यू कैन शेयर योर आइडियाज। ठीक है, और उसमें आपको कोई कंसेप्ट दिया, आपने उसको इलस्ट्रेट कर दिया within a second. So you no need to, you have to carry your gadgets. Always no need to use your Photoshop or any kind of app for that. If you are handling very easily with the pencil, definitely you are not done from a fine art background. So you no need to start working with the portraits. आपने portrait कितने अच्छे बनाए. You have to understand the importance of drawing. Like that, you can easily conceptualize the thing and visualize the things of the client. इतना ही drawing सीखना है. अगर उसने आपको बोला कि ओके यार एक मेरे एड फिल्म के अंदर एक डॉग है जो एक ब्रैड के पीछे भाग रहा है, अब ब्रैड आगे आगे भाग रहा है और वो डॉग उसके पीछे पीछे भाग रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ पपी, राइट। सो अब उसने आपको एक आइडिया दिया, सो हाउ यू विजुअलाइज फॉर दैट एंड विद इन अ सेकंड, विद इन अ 2 मिनट्स आप उसको कैसे उस बात को पिक्चराइज करके उसको दिखाते हो, ओके दिस वाज द शॉट, इट वुड बी द शॉट एंड दिस इज द कैरेक्टर। तो कैसे आप समझाओगे उसको। So for this point of view, अगर आपको पपी बोला गया बनाने के लिए, at least you guys have to be ability like that कि आप उस पपी को पपी की तरह बनाओ, वो समझ रहे हो ना, हाथी ना लगे, वो कुछ और ना लगे जाके, तो एटलीस्ट इतना ड्राइंग होना चाहिए कि आपको एक छोटा सा डॉग बनाना तो ओके वो 4 पैर में, भले ही वो सिंबॉलिक हो और बहुत बेसिक हो, लेकिन आप डॉग डॉग की तरह हो, आपको उसकी ज्योमेट्री फॉर्म प्रोपोर्शंस और एटलीस्ट उसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो कि डॉग में और एक पपी में क्या डिफरेंस होगा, राइट। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो ड्राइंग बहुत चीपेस्ट मीडियम है, स्केचिंग पेंसिल के थ्रू बहुत चीपेस्ट मीडियम होगा, और उसी की हैंडलिंग को हम कहीं ना कहीं जाके यूज करेंगे, हम डिजिटल टूल यूज करेंगे। इज इट ओके? तो जब आप फ्रेंडली हो जाओगे लैपटॉप, क्योंकि आपको अगर पेन टैब यूज करना है तो डेफिनेटली यू नीड अ लैपटॉप और यू हैव अ डेस्कटॉप, वो आपको कैरी करना पड़ेगा। सो यू गाइस हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद द डिजिटल पेन टूल। आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट केस कि मैं ये मैंडेटरी नहीं करूंगा कि आपको अपना काम केवल पेंसिल में ही देना है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपने पेंसिल से काम किया है, आपने पेन टैब से काम किया है, तो आपको अपना लैपटॉप कैरी करना है और आप उससे आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये कि स्टार्ट वर्किंग विद द बेसिक्स, because it's as the name of the course is foundation art, so you guys are about the foundation. What is foundation is? Why we call it foundation? Foundation, it means the roots, right? We call it ना, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, right? So foundation, it means your skill. Foundation, it means the knee, the strongest part of the bottom of the your building of your future of career, right? So you guys have to be aware about that. Foundation art
It's whole related with your skill, right? Pen it out. So are you guys having your pencil right now? Then okay. So first of all, I have one PPT which I am going to share with you. So it's related with the tools and gadgets. क्या आपको यूज करना है, पेपर पेंसिल कौन से होंगे, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा. सो आर्ट मटेरियल एंड मीडियम्स, दैट्स द टॉपिक कि क्या होगा और आप लोगों को क्या क्या चीजें कैरी करनी होंगी. ठीक है. So the different mediums used in art are oil paints. Aware about the oil paints? Oil paints are kind of color we can put it on the paper it's a canvas. Canvas is a kind of cotton cloth kind of thing, and you have to do oil paint always on a canvas, right? The next one is watercolor. Watercolor is a medium which we can use with the water, and we can use it on paper, right? So it's a different mediums of coloring. Acrylic paints again are water soluble paints, so we use it on a canvas or we can use it on a paper, both. So it's mostly for artistic view, artistic creation. Sometimes client wants detailed work with traditional style, so artists give more and more detailed on a, without digital tools they use some traditional style of coloring, but rarely. Right now nobody wants for that. पहले क्या होता था, बैकग्राउंड बनाने के लिए ना पूरा कर्टेन पेंट किया जाता था. कर्टेन होता था काफी बड़ा और दे स्टार्ट पेंटेड विद अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. सो पूरा कर्टेन पेंट करते थे, आगे कुछ होता था. सो ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट द थिएटर्स. थिएटर्स में प्ले वगैरह आपने देखोगे कभी जाके, तो वो बैकग्राउंड में ना कर्टेन होता है ना पीछे, वो तो आर्टिस्ट डिजाइन करते हैं एक बैकग्राउंड. सो पहले ऐसा होता था, अभी इतना जरूरत नहीं पड़ता. ग्रेफाइट पेंसिल, so definitely we need a graphite pencils. Graphite pencils are same pencils we have to use for drawing and sketching from the beginning of our childhood. So you guys have to carry pencils. Just write down the name of the pencil which you have to carry. Just open your notebook. Online students also just open your notebook and mark the name of the pencils which you have to buy. Okay. It's not too much costly. It's a kind of very basic pencils. I know about that. You guys, if you having little bit drawing knowledge, so you have to understand the importance of pencils. So just note down, because in a next session of foundation art we will start working with these pencils. Okay. So the graphite pencils is a normal pencil. It's HB first. Normal HB. HB, it's a combination of highlight and bold. So it's a medium pencils. It's not too dark or it's not too light. And when we work with the H pencil, so it is a lighter pencils. It's called H. So we don't want H pencils. We work always B. So normal one is HB pencil. Second one you have to buy 2B. 2B. It means the 20% bold, and then 4B, just make a gap of one pencil. So 3B is also available, but we need an HB, 2B, 4B. It's a B for bold. Bold, it means the darkest pencil. Okay. So 2B, 4B, 6B, and 8B you can use. Okay. And you guys have to buy an sketchbook A3 size. A3 size sketchbook you have to buy. Okay, so the size of A3 is a paper size. Is it okay? As a future graphic artist, you have to understand about that technical word A3, A4. It's a printed. In a printing, definitely you have to understand about the paper name A4, A3, right? So online students, you have to buy A3 size sketchbook, and you have to submit your artwork on A3 size paper, right? Assignments, soon I will share with you assignments, how many assignments you have to complete, and then you guys have to work out on sketching, on drawing initially on your sketchbook. Okay, for rough drawings or for practice you can use normal A4 size paper or printing paper you can use for that.
practice point of view, right? So, or practice point of view, you have to buy normal A4 size papers, printing papers. But when you buy a sketchbook of A3 size, so you have to focus the paper is should be cartridge. Okay, कार्ट्रिज शीट होंगी जो आपकी स्केचबुक होगी, कार्ट्रिज में ही मिलेगा वैसे तो खैर आपको आइवरी और कार्ट्रिज दोनों शीट अवेलेबल होता है। आप कार्ट्रिज स्केचबुक लोगे तो मोस्टली वो स्केचिंग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो इट्स सफिशिएंट फॉर राइट नाउ। यू हैव टू बाय 4 to 5 pencils and 1 sketchbook. Is it okay? Great. And the other one is a charcoal. Charcoal is a not graphite pencil, is called charcoal, because in a graphite we have some point of wax, and in a charcoal it's a purely coal based, right? It's a powder we can use. We have a stick of charcoal. So charcoal, it means the darkest point, darkest work we can do with the help of charcoal. It's just a black, but no need to use charcoal because it's a little bit complicated to use and handy. It's not too handy. Pastels, oil or chalk pastels. So pastels, again a part of coloring. Oil pastels, it's reflect like a oil color. So you can just use wax color in your childhood. I think everyone used wax color. So it's same thing. Or chalk pastels, kind of chalk we use for drawing in chalkboard. अभी उसमें बहुत वेरिएशन आता है, सो उसको ड्राई पेस्टल्स बोलते हैं और इसको ऑयल पेस्टल्स बोलते हैं। सो कलरिंग के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं आप लोग, बट इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, सो यू गाइस कैन बाय इट, इट्स नॉट टू कॉस्टली। ड्राई पेस्टल and oil pastel is very cheapest organ of coloring. So but one more thing you have to buy in future, not right now. For the color theory we need some color experiments we have to do, and you have to buy poster colors, right? Because with the help of mixing the colors, so we can understand that the difference between digital color palette and the traditional color palette, right? So there is a difference in both. So when we work with the Photoshop or digital print media, so there is a separate color theory for the digital color platform, and there is a separate color theory for the traditional style, right? So we have to understand both. We have to understand the traditional style of color theory, and we have to understand about the digital color theory. So for the digital platform, we use Photoshop or other digital apps, but traditional style we are working. When we work, we start with the poster colors. Any doubt? But not right now. After some sessions, we need poster colors. But initially, we start with the pencil, right? So here is the view of oil paints. Oil painting is the process of painting with pigments bound in oil. So it's a mixture of oil and color. Use different oil, allow for different drying times, and if the paints contain resin, you will get a glossy finish. Oil paints are prized among artists because the longer drying times allow the artist to manipulate the paint at the later time. So, as we all know about the oil paints, are you aware? You done any time use oil painting? किसी ने किया है? In 12th oil paint किया है? अरे good. So the easiest part of the oil painting is that कि वहाँ वो तब काफी देर तक बैठ रहता है। जब हम ऑयल करते हैं तो टेक टाइम्स टू ड्राई, तो आर्टिस्ट के पास ऑप्शन रहता है कि वो डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क कभी भी कर सकता है, चेंजेस कर सकता है अपने काम में, अपने डिजाइन में, अपने ड्राइंग में के अंदर। तो ऑयल पेंटिंग बहुत इसलिए बहुत अच्छा होता है, और जनरली बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स को ऑयल में बनाते हैं, ऑयल कलर्स के साथ बनाते हैं, ठीक है। वाटर कलर wash is the most used technique and the one that defines watercolor for many artists. You create a wash by first abundantly wetting the paper with your brush and then applying the water pigment with your brush. Okay, so watercolor is purely water soluble colors. It comes in a tubes or it comes with a cake also. So the image is in a cake, and I think in a school definitely we do some watercoloring part instead of we know about the poster coloring. Poster color is the pigments that comes in a bottle of glass bottles, small, and the watercolor is a
comes in a cake or in a tube. So most professional artists comes with a watercolor, the professional mediums, and wash is the technique for coloring watercolor. Wash, right? So we use wash the paper first in a dip in a water, and then we start working. We spread colors, and it's a transparent color. So watercoloring का style होता है कि transparent होगा, ठीक है? Acrylic. Acrylic paint is pretty easy to work with, making it a great option for beginners. We use acrylic paint because it dries very quickly. लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है एक्रिलिक कलर को यूज करना, वाटर सॉल्यूबल है लेकिन ये बहुत जल्दी सूखता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो अगर हम पेपर पे काम कर रहे हैं, वी स्टार्ट वर्किंग एंड वी अप्लाई कलर एक्रिलिक कलर ऑन द पेपर सो इट ड्राइज क्विकली। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मिक्स करने के लिए, ठीक है। पोस्टर कलर इज मच हैंड। And there's a graphite pencil. Pencil, also called graphite pencil, is a writing and utensil with a graphite lead embedded in a wooden shaft. It is mainly used for artistic sketching and drawing, for stenography or notes. Its benefits are the simple uses as well as being able to remove what you have drawn with an eraser, right? So again, pencil का benefit इसमें लिखा हुआ है कि सबसे अच्छा benefit जो है कि इसे erase कर सकते हैं. So we have an option of Control Z जो बाद में बनाया गया टेक्नोलॉजी के साथ। पेंसिल के साथ हमें इरेजर मिलता है, कलर्स के साथ इरेजर नहीं मिलता, ठीक है। सो यहाँ एक ऑप्शन आपके पास रहता है, यू कैन इरेज एनी टाइम। सो बचपन से लेके हमें सबसे पहले स्टार्ट मिलता है पेंसिल के साथ कि लो पेंसिल पकड़ो और शुरू हो जाओ कुछ लिखना पढ़ना, राइट। सो दैट्स द वे। Two types of pencils artists uses according to their need, H or B. H, as I told you that H is a highlight pencil. It means very lighter pencil. So it comes 2H, 4H, 3H, 5H. It means the lightest version of pencil. Generally, engineers doing with engineering drawings they use, or architects they use H pencils. But as a sketching artist, we need bold pencils. So we work out with the HB, B, 2B, 4B, 6B, 8B, right? And there is a charcoal. So soft pastel and charcoal. Charcoal and pastels are both dry media that can be applied onto paper and primed surfaces. Charcoal is made from burnt wood, resulting in a powder. Right? So it comes in a sticks. So जो इमेज आपको दिख रहा है ब्लैक, तो कौन कब से बंद है ये, कब से बंद है यार ये? ओके यार बताना चाहिए यार, मैं सोच रहा हूँ दिख रहा है। Online students, you can see the charcoal and soft pastel. Is it visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. यहाँ बहुत सारे ऑफलाइन बैठे हुए हैं यार, इन लोगों ने बताया नहीं मुझे, ऑलरेडी चैप्टर बंद है। क्या हुआ? कॉल आ रहा है, किसका? अमेजोन का। अच्छा यार, क्या कह रहा है? उठाओ उठाओ, स्पीकर पर डाल दो। काट दिया? मैं कब कह रहा हूँ यार, ये तो हंसने तो यार, ये तो अब कोई भी हंस सकता है, हंसने के लिए कैसे मना कर सकते हैं? ओके, सो अभी स्टार्ट होने वाला है शायद। ओके, सो ये दिख रहा है ना, जो ये चारकोल स्टिक्स हैं और वो सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। चारकोल स्टिक्स से हम स्केच करते हैं, कैनवास के ऊपर भी काम करते हैं, और हम पोर्ट्रेट्स वगैरह भी कर लेते हैं, डिज़ाइन भी कर लेते हैं, राइट। दूसरे साइड आपके सॉफ्ट पेस्टल्स हैं। इज इट क्लियर? अगेन ये पेंसिल्स हैं, एच से स्टार्ट होते हुए हमारे पास, आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा डार्केस्ट पेंसिल यहाँ आपको दिख रही होगी, तो
2H, H, HB, HB, the normal ones are bold, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 9B, 10B, right? So darkest pencil bold में जाएगा. तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पेंसिल्स और स्केच के बता दिए, ये आपको परचेज करना है. बाकी अभी कोई डाउट आई थिंक इसमें नहीं होगा. Online students, any issue or you want to ask anything? No, sir. Is it clear? You guys aware about the Yes. drawing tools? Yes, sir. So pencils and sketchbook you have to buy, okay? और बाकी कुछ मीडियम्स के बारे में आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मीडियम्स होते हैं जो जनरली आर्ट में हम यूज करेंगे ना, फाउंडेशन आर्ट. So in future definitely we go with the some kind of traditional pigments like poster color we have to use for that. But right now we need only pencils, and you have to understand about the importance of pencils. So you have to start working with the pencils. So just start working with a pencil. Buy if you have pencils of 2B, 4B, 6B, then start working on the normal A4 size paper you can buy for rough sketching, or for your final assignments you can use your sketchbooks. Okay. Any issue? No. आप लोगों का कोई इशू, कुछ डाउट या कुछ पूछना हो? आई थिंक इतना कुछ है नहीं इसमें कुछ खास. जो टूल्स हैं वो आपको यूज करने हैं अभी, बट हाउ टू यूज योर टूल्स. सो इफ यू आर हैविंग योर पेन और नोटबुक, ये दो चीजें हैं अभी. तो बेसिक्स आप लोगों को अभी क्या करना है कि कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कब तक किया. सो यू गाइस हैव टू डू सम प्रैक्टिस विद द शेप्स, राइट? शेप्स यू हैव टू ड्रॉ बेसिक शेप्स फर्स्ट. बेसिक शेप्स कौन कौन से होते हैं? सो देयर इज 5 बेसिक शेप्स, राइट? एक हुआ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल एंड सर्कल. ठीक है. एंड ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बहुत काम आने वाली है इन फ्यूचर. सो यू गाइस हैव टू बाय पेंसिल, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद अ pencil and start making basic shapes. Okay, so with the help of basic shapes, everything we can draw. Everything, it means from whole the world. You can draw anything with the basic shapes. आप अपने आसपास देखो, अगर मुझे कोई भी चीज बनानी है तो there is a basic shape, जो मैंने आपको 5 बताई. Am I right? Just check it out. Everything. So it's kind of tools, gadget, table, chair. आपको shapes दिख रहा है? If I want to make AC, what is the shape? Suitable. Rectangle. I want to draw door. I want to draw table. I want to draw. What will be the shapes? Basic shapes. Circle. There is a circle. If you see water from the top, so there is a circle. Otherwise, it comes in a oval, right? And the whole body of the bottle you can draw with the help of rectangle, right? And then we make a curve in it from the center, so it converted into a bottle. Is it right? So that's the formation we have to use. आपके जो eyes हैं वो इस तरीके से coordination में काम करेगी कि आपको चीजें shapes में देखना है. Is it okay? So first of all, if you want to be a good designer or good artist, you have to convert logos or design. So you have to understand the importance of basic shapes. आपको art की तरह नहीं देखना. अगर आपको बोला जाए you have to draw a bus, so what comes in your mind?
अभी वो सेकेंडरी है। अभी ना क्या, अभी मैंने आपको बात किया शेप्स के बारे में, तो आपको शेप दिमाग में आ रहा है। अगर वैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बस बनाओ, तो आपके दिमाग में पता है क्या है? खिड़की, दरवाजा, फिर आपको कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, व्हील, फिर आपको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आएंगे दिमाग में, देन आपका रिप्लाई होगा सर वो नहीं हो सकता, सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बात करूं, वी हैव टू ड्रॉ अ ह्यूमन फिगर, which basic shapes comes in your mind first? Oval for the face, the rectangle for man, torso for rectangle we can use, and right, and for nose, nose, you can go with the triangles, and for eyes oval, right? So that's the main basic motive about that कि अगर मुझे किसी को अपना आइडिया शेयर करना है और मेरा ड्राइंग स्किल बहुत वीक है, मुझे स्केचिंग नहीं आता, so how I convert my thoughts into visual, so वो क्या होगा? बेसिक चीज। It will help you to communicate my idea to the client कि ओके देखो यार एक ह्यूमन फिगर है, वो बोलेगा ओके ह्यूमन फिगर है, लेकिन वो है आपने दिमाग से उसे बताया ओके दिस इज द ह्यूमन फिगर, और वो चल रहा है, वो बात कर रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेट नहीं होगा। वी आर नॉट अ लॉयर, हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और मीटिंग में आपको बोलता है कि ओके आपको एक लोगो डिजाइन करना है, राइट, तो आपका प्रोसेस क्या होगा? वो बोलता है कि सपोज, हाँ, तो उसने बोला कि मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, व्हाट्स योर प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद जो बताएगा हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो उसे चाहिए वो आप उसे बना के दिखाओगे। तो क्लाइंट आपको पता नहीं क्या क्या बनवाएगा, वो तो फ्री आदमी है, होते क्या है, वो तो पे कर रहा है, तो आपको बोलेगा यार ये बना दो, अभी अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा बना दो। सो एटलीस्ट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके आइडियाज के। सो वी हैव अ क्वेश्चनर फॉर दैट, एज अ डिजाइनर वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स थॉट, ओके, कि वो कहां स्टक हो रहा है। अदरवाइज एज एन आर्टिस्ट हमारे हमसे जो एक्सपेक्टेशंस होगी ना वो होगी कि बनाते रहो, कुछ क्रिएटिव नहीं है, कुछ नया नहीं है, आपसे हमेशा बोला जाएगा। सो हाउ मेनी सैंपल वी हैव टू क्रिएट फॉर द क्लाइंट? सो एट लीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिफिक पॉइंट्स कि क्लाइंट को क्या चाहिए, राइट। सो ड्राइंग आपको कहाँ हेल्प करता है? क्लाइंट के माइंड को समझने के लिए और उसको स्टक करने के लिए, ओके यहाँ इससे ज्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा। सो वो आप क्या करेंगे? वी नीड सम क्वेश्चनर शीट, वी प्रिपेयर फॉर दैट, लाइक कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्या है, कितना पुराना कंपनी है, एंड व्हाट्स द रेफरेंस यू हैव, इफ यू लाइक सम लोगोस रिलेटेड विद योर आइडिया और कांसेप्ट और योर प्रोडक्ट, तो वो आप मुझे शेयर कर दो, राइट। तो अगर क्लाइंट ने आपको 3 या 4 आइडियाज दिए क्योंकि मुझे ये वाला वुडलैंड का, आई हैव अ कंपनी ऑफ शूज, राइट, माय मैन्युफैक्चरिंग इज शूज, और मुझे अभी नई कंपनी ने शूज का शुरू किया, आई नीड अ लोगो फॉर दैट। सो आप क्या करोगे? आप वो बोलेगा बनाओ, तो आप कितना बनाओगे? डेफिनेटली वी वांट सम क्वेश्चंस कि उसकी स्पेसिफिक आइडिया क्या है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो फॉर्मल शूज बनाता है, स्पोर्ट्स शूज बनाता है, बच्चों के लिए बनाता है, बड़ों के लिए बनाता है। अगर हम काम शुरू कर देंगे, वी स्टार्ट विद द पेंसिल, ओके अभी बना के दिखाता हूं, लो सर मैं शुरू करता हूं, और आपने शूज बना के दिखाया, सर ये लोगो बन गया। That's not the professional way. Is it clear? So be a professional artist, we need to understand the client process and thought, and then we have to apply, right, कि उसे कैसे implementation तक लेके जाना है। So आपको प्रॉपर एक शीट तैयार करनी होगी, क्वेश्चनर तैयार करना होगा, प्रेडिक्ट करने होंगे क्लाइंट को क्या पसंद है, कौन सा क्लाइंट का रेफरेंसेस कौन से हैं, देन यू हैव टू मेक सम आइडियाज, यू हैव टू शेयर योर आइडियाज। ओके, सो इन दिस शेयरिंग प्रोसेस यू स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल वे कि आप उससे आइडिया शेयर करो, ना कि उसे आप अपना कंटेंट दे दो। अगर आपने उसको अपना कंटेंट बना के पहले ही दे दिया क्लाइंट को, तो
he has a good team of Photoshop artists. I have always told the Photoshop tool of better kind of person. So वो जाएगा और आपको रफ स्केच और आइडिया वो देगा उसको और बोलेगा ओके यार देखो ये आइडिया इसको बनाना है. So your idea is gone. And as an artist we charge for the idea, not for the using electricity, Photoshop and the other tools. Is that okay ना? इतना तो समझ में आता है ना? As an artist, as a designer, we charge for the idea. An idea is just like you see the logo of Nike. I can see. You see the ना तुमने Nike का. It's very easy ना, कोई भी बना सकता है, किसी को भी दे दो. उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना. तो फिर अगर इतना सा आइडिया जब इजीली किया जा सकता है तो अगर कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है आज के टाइम, राइट? तो हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करते हैं. क्यों? इसमें अगर क्लाइंट को लगेगा कि ये काम मैं भी घर बैठ के कर सकता था जो इसने कर दिया 5 सेकंड के अंदर, तो वो आपको चार्ज तो करेगा. पहली चीज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू हैव टू क्रिएट अ क्वेश्चनर फर्स्ट. आपको बताना है उसको जो मैं काम कर रहा हूँ. देयर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट कि आपके थॉट्स पर मैं काम करूंगा. पहले उसमें रफ इलस्ट्रेशंस होंगे, स्टडी होगा, रिसर्च होगा, फिर उसके रफ इलस्ट्रेशंस बनेंगे, फिर वो सब फाइनल लेआउट और डिजाइन तक पहुंचेंगे. देन वी यूज फोटोशॉप और अदर टूल्स लाइक इलस्ट्रेटर और कोरल डेफिनेटली वी यूज फॉर द वेक्टर आर्ट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट. आपने कभी लोगो डिजाइन करवाया, कभी किया किसी ने? यस सर. कितना चार्ज किया? चार्ज नहीं किया ना. अभी एक एजेंसी के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि लोगो डिजाइन करना है, तो यू नो द चार्जेस. इट्स अराउंड दे स्टार्ट विद द 2 lakh to 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh, 10 lakh, 50 lakhs. It all depends on the experience of the company and the client of budget. And if you are a good artist of Photoshop or Illustrator, so आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना चार्ज करोगे. अगर आपको कोई कंपनी बोलता है कि ओके मेरे लिए लोगो डिजाइन कर दो, आप कितना चार्ज बोल सकते हो? अगर फ्रेश है 2 करोड़ बोल सकते हो, 2 CR. रीजन वो देने को तैयार है. ही कैन पे इजीली. आप बोल सकते हो, लेकिन यू हैव गेट सम कॉन्फिडेंस फॉर दैट कि नहीं मैं इससे कम में काम नहीं करता. मैं भी नहीं बोल सकता. द रीजन, एक प्रोडक्शन हाउस में आप ले जाओगे एड एजेंसी के अंदर और उधर जाके वो क्लाइंट अगर मीटिंग करेगा और बात करेगा तो वहां पे जो पीआर टीम होगी ना वो इजीली 2 CR बोल सकती है उनको. रीजन क्या है? काम आप ही करोगे. आप जैसे लोग होंगे जो 2 करोड़ का लोगो भी बनाएंगे. सर एक्सपीरियंस के बेस पे. जस्ट अ मिनट. यस सर एक्सपीरियंस matters. Definitely experience matters, but in a backhand there is some more information they have. Actually they are designers and they know कि principles क्या होते हैं, color theories क्या होते हैं, क्या कलर उन्होंने पिक किया, लाइंस के पीछे थ्योरी क्या है, शेप्स के पीछे थ्योरी क्या है, राइट? सो all the theories they are aware about that. So as a designer you guys have to be understand about the theories, principles, elements of design and the experience of knowledge, right? So जब आप एक लोगो के लिए जाते हो, so आप एक शेप और डिजाइन और कलर के बारे में नहीं सोचते. It takes huge time. There would be a PDF of Word format 5 where you put whole study material of your design. Like कि आपने अगर रेड कलर यूज किया है तो क्यों रेड कलर यूज किया है एंड व्हाट इट सिंबलाइज, राइट? आपने व्हाइट यूज किया है उस लोगो के अंदर, सो व्हाट इट सिंबलाइज, व्हाई यू यूज दिस व्हाइट कलर फॉर दैट लोगो, राइट? आपने कोई पिक्चर यूज किया, आपने वो इलस्ट्रेट किया, तो उसका चार्ज आपने क्यों यूज किया, उसके पीछे रीजन होगा. सो देयर वुड बी अ थ्योरी बिहाइंड दैट एंड सो दैट दे चार्ज अराउंड 2 CR, राइट? बट वी कांट, बिकॉज आप एक फोटोशॉप वाले के पास जाओ जो बाहर प्रिंटिंग की दुकान पे काम करते हैं, तो वो बहुत इजीली आपको लोगो बना के दे देगा. आप उसे बोलो विजिटिंग कार्ड बनाना है, वो विजिटिंग कार्ड बनाएगा, साथ में लोगो भी लगा देगा आपका बना के. वो कुछ नहीं करेगा, एक सर्कल लेगा, उसके अंदर आपको टेक्स्ट लगाएगा, कलर चेंज कर देगा. आपने बोला इसमें एक बुक लगा दो, वो बुक लगा देगा. आपने बोला शूज का लोगो चाहिए, तो बोला ठीक है, वो इमेज हटाएगा, एक वेक्टर शेप निकालेगा, शूज का उधर लगा देगा, कलर चेंज कर देगा, बोले लोगो हो गया.
उसका ये चार्ज करेगा आपसे 200-500 रुपए। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के पास जाओगे, किसी आप अच्छे डिजाइनर के पास आप चार्ज करने जाओगे, बात करोगे, तो स्टार्टिंग दे स्टार्ट विद 1 लाख 2 लाख, और किसी पॉपुलर एड एजेंसी के पास जाओगे तो चार्ज अराउंड 1 CR 2 CR। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट। लेकिन हमारे क्लाइंट और उनके क्लाइंट्स में बहुत डिफरेंस होगा। जो उनके क्लाइंट्स होंगे वो हमारे पास नहीं आएंगे। सो 2 CR वाला क्लाइंट वैसे ही हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो एक एड एजेंसी को अप्रोच करेगा, क्योंकि तो पता होगा देयर वुड बी अ टीम of specialized people who design logos only, right? So be aware about that. So the experience matters always, but as a designer you have to understand about the importance of theories, the theories of art, the principles of art, right? क्योंकि उसके बिना आप अगर काम करेंगे तो आपके चार्जेस तो वही रहेंगे 100 200 500 5000, क्योंकि आपको थ्योरीज नहीं पता। क्लाइंट आपसे पूछेगा रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, रेड की जगह तुम इसमें ऑरेंज कर दो पीछे, तो आप क्या बोलोगे? 500 रुपए दे रहा है, आप बोलो कर दो यार, एक कलर ही तो चेंज करना है, जाके फोटोशॉप में एक लेयर चेंज कर दो। क्लाइंट को ऑरेंज चाहिए, मैंने ऑरेंज डाल दिया, पर वो बोलेगा इसको ब्लू कर दो, आप ब्लू कर दोगे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलोगे एक ही लेयर में तो चेंज करना है, राइट? लेकिन एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब काम करता है, सो देयर वुड बी अ रीजन। कहाँ गया अमेज़न वाला? आ गया? अरे गुड यार, क्या ले गया है? फोन? अरे I think you got my points, guys. So shapes is most important part of the beginning, and you have to understand the importance of shapes. So everything is in a shape. So just visualize and observe, everything comes with a shape. Observation is most important. So you need to start practicing with the basic shapes like square, rectangle, triangle, oval and circle. Okay, and आपके आसपास जो भी चीजें होंगी, वी स्टार्ट वर्किंग विद द बेसिक शेप्स, राइट? तो जैसे बॉटल है, ग्लास है, टेबल है, चेयर है, इनको हम बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करेंगे। जो भी आपके घर पे चीजें अवेलेबल है, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ में, कोई इशू इसमें? it will help you to understand and it will help you to increase your observation. ऑब्जर्वेशन समझते हो? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बेसिकली हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं, और फिर हमें लाइक कुछ करना है तो उसी ऑब्जर्वेशन से बेसिस पे हम Observation, it means a part of recording something in our mind. It called observation. कि मैंने किसी चीज को देखा और एक बॉटल मैंने देखा, मैं घर चला गया, right? You can understand with an example. I will give you an example कि how many red car you seen from the morning till this time? How many red car you seen? You count it? किसी को याद है कितनी सुबह से लेके आज अभी तक आप लोग यहाँ आए, कितनी रेड गाड़ियां आपको मिली, कार? किसी को याद नहीं है ना? मुझे भी याद नहीं है। रीजन? देखा तो होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज आप घर से निकले होंगे और यहाँ तक आने में आपको रेड कार नहीं मिली होगी, मिली होंगी ना। लेकिन इट्स नॉट अवर ऑब्जर्वेशन। रीजन? रीजन इज बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी इज दैट कि हमारा कैमरा ऑन था, आई इज अ कैमरा काइंड ऑफ थिंग, राइट? लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ था। जब तक हम बटन से क्लिक नहीं करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। और रिकॉर्डिंग कब शुरू होता है? सपोज द रेड कलर कार हिट्स द डिवाइडर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अगर वो ऐसा कुछ करती, अगर उसमें कुछ आपको ऐसा दिखता कि ओके यार ये कार बहुत तेज स्पीड से गई, या वो कार सपोज काइंड ऑफ अ फरारी आपके बगल से निकलता, तो आपका वो क्या होता? ऑब्जर्वेशन होता कि ये रेड कलर की कार कौन सी गई है, और वो आप क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं उसको। सो वो इन फ्यूचर जब आप उसे रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी से, तो वो ऑब्जर्वेशन में होती है आपके कि ओके आज मैंने रेड फरारी देखी थी मॉर्निंग, और अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो साहब बात को। गॉट इट माय पॉइंट? सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो right now you guys are in a field of animation and VFX, so you need to observe things related with you, like the hoardings,
banners, magazine, cover pages, designs, or nature, scenery, landscape, sunset, sunrise, dogs, poses, animation, everything, chair, because in future definitely you guys have to create for that. आप ये नहीं बोल सकते एज एन आर्टिस्ट, हमें बोला जाता है ना कि एक आर्टिस्ट क्या काम करता है. सो जैसे आप समझो कि आर्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट एन इजी जॉब, नॉट एन इजी टास्क. कि डॉक्टर अगर कोई MBBS है और ही इज अ हार्ट सर्जन, ओके, सो उसके बाहर एक बोर्ड होता है, ही इज अ कार्डियो, राइट. और आप एक कार्डियो के पास आप जाके बोलते हो कि सर कल मेरे पैर में चोट लगा था, मेरे बोन में लग रहा है फ्रैक्चर हुआ है, एंड देयर इज अ स्वेलिंग, बिकॉज ही इज डॉक्टर. लेकिन वो रिप्लाई क्या करेगा आपको? सीधा बोलेगा, मैन आई थिंक यू आर इलिटरेट, आई हैव एन ह्यूज बोर्ड आउटसाइड माई शॉप and you have to check it out. It's a cardio. I'm cardiologist. I deal with only the patient with related the issues with the cardio problems, right? You are on the wrong place. लेकिन किसी आर्टिस्ट के घर के बाहर बोर्ड लगा देखा है? I am only the portrait specialist. I am only the hand specialist. I am only the feet specialist. क्योंकि as an artist you have to be ability to create anything. Anything comes from the nature, comes from the human figures. बच्चा, बूढ़ा, आदमी, जानवर और टेबल, चेयर, प्रॉप्स, प्रोडक्ट, कुछ भी बनाना होता है, कुछ भी. सो विद इन अ फ्यू सेकंड आपको क्लाइंट बोलता है, ओके यार मेरे ना एक बॉटल्स बनाता हूँ, मिनरल वाटर बना रहा हूँ और मुझे मिनरल वाटर के लिए एक लोगो डिजाइन चाहिए. So you have to be aware about that and you have an idea and thoughts, और आप जल्दी से इलस्ट्रेट करोगे. आपको किसी ने बोला ओके यार एक हम जू बना रहे हैं और जू के लिए गवर्नमेंट को ना एक अच्छा सा एक बैकग्राउंड चाहिए और इनको एक आइकन बनाना है जू के लिए या मैस्कट बनाना है जू के लिए. तो एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मैस्कट काइंड ऑफ थिंग. सपोज इन अ कॉमनवेल्थ गेम देयर वुड बी अ मैस्कट ऑफ अ लायन कैरेक्टर, सो यू हैव टू क्रिएट. आपने नार्निया फिल्म देखी है? सब नहीं देखी हो नार्निया, है ना? So there is a lots of combination of characters. There is a combination of a horse and a human figure. Am I right? So as an artist, we have to study whole things. और ये सारी चीजें क्या है कि आपके विदाउट स्टडी नहीं बनेगा. अगर आपको एक घोड़ा बनाना तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ हॉर्स. You have to understand about the movement of horse, the upbringing of horse की वो कैसे बड़ा होता है, क्या anatomical changes आते हैं. So then you can create a horse, right? So बहुत सारी चीजें, बहुत सारे waterfall, nature, flowers, जब हमें कुछ मिलता है so we have to understand and we have to need to draw it. You cannot deny. Is it clear? तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं होगी डॉक्टर की तरह के हम कार्डियो हैं, हम ये हैं, हम आई स्पेशलिस्ट हैं, हम सर्जन हैं, हम हार्ट सर्जन हैं. सो यू हैव टू बी एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग. सो एनीथिंग इट मीन्स यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर. सो घर से बाहर निकलने के बाद आज से आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना, राइट? और ऑब्जर्वेशन में से आप घर जाके जब आप बैठोगे फिर आपको अपनी पेंसिल पिक करना है और उस ऑब्जर्वेशन में से जो आपने देखा उसको आपको इलस्ट्रेट करके देखना है. Then you have to check it out कि आपसे वो 100% जो आपने ऑब्जर्व किया था उसमें से 10% और 20% आपसे ड्रॉ हो रहा है, राइट? बस इससे ज़्यादा नहीं होगा. डोंट एक्सपेक्ट कि आपने देखा और आपने 100 आउट ऑफ 100 बना दिया. सो डोंट बिलीव इन दैट. वो अभी इतने इजीली नहीं होगा. बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं भूल रहा हूँ. वो बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्ड है, लेजेंडरी लोग हैं और लेजेंडरी आर्टिस्ट वी कैन से. He just seen once and he can draw with a good proportion, with perspective and the anatomical part too. So you guys have to be good artist, good designer, right? But not a fine artist. Okay, so be a good observer first. आज से आप लोगों को ना अपने मोबाइल फोन के कैमरे ऑन रखने. आपको कुछ अच्छा लगता है, you guys have to be click it because it's a part of observation, it's a part of your training. आपके फोन हमेशा ऑन रहो. जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है, वो भले ही एक रास्ते में चलता हुआ कोई एक छोटा सा डॉग हो सकता है,
वो कोई सनसेट का सीन हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है। फोटोग्राफी कितने लोग करते हैं? ग्रेट. So guys, you are using DSLR or normal mobile camera? DSLR, great. So it's a part of your skill. It will help you to understand and communicate your ideas. It will help you to understand the lighting. In future, when we go with the lighting in a Maya or Max, it will help you to understand, right? And for the movie making part, so definitely there is a camera you have to use for that. So camera angles and shots. So camera is most important thing. If you are good in a photography, so it will help you to understand how to compose a frame, right? ये सारी चीजें आप लोगों के स्किल के साथ यूज होंगी. एनी डाउट और क्वेरी? नो. सो नेक्स्ट सेशन आपका फाउंडेशन आर्ट का नेक्स्ट वीक होगा और उसमें आप लोग मुझे बेसिक शेप्स के अपने ड्राइंग्स, और अगर आप लोग पहले ड्राइंग करते थे तो अपने कुछ ओल्ड ड्राइंग्स आप लेके आओगे. एवरी ऑफलाइन स्टूडेंट्स कम्स विद ओल्ड ड्राइंग्स जिसमें आई कैन जज कि कितना आपको पहले से कैपेबिलिटी ठीक है और आपको कहाँ से शुरू करना है. कोई डाउट? Offline student, you guys can submit or you can share your drawings if you have. You can share your drawing or practice work with me on my WhatsApp with your name, right? Or in future, definitely after within a few class, we have to create an drive. So you have to put your assignments or your data through your drives. Okay, so it would be a Google Drive. So definitely in future we will do that. Any issue? Online students, No, sir. are you there or are you guys sleeping? No, sir. Is it okay now? Yes, sir. Okay. So it's a too lengthy and verbal session. So right now I think I have to stop the session, and already we have to mark attendance. So